Hello everyone, this is Parul Goel from Infinity Vision. Welcome to all of you again in a new session of NTSC Stage 1. Last video में हमने discuss किया था, we have begun with the new topic which is actually of class 9th, that is diversity in living organisms. So उसी topic को इस video में हम continue करेंगे. Last session I have told you about that what is diversity, what is classification, what is taxonomic hierarchy, what are taxons, and then we have also discussed about the nomenclature, binomial nomenclature, and then the rules which is to be followed while giving the scientific names to any organisms. And then we have learned about the different kingdoms, that is 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom classification, and yes, of course, 6 kingdom classification, which is actually given by the Carl Woese. So in the last video we have discussed all about that. Now in today's video we are actually beginning with the one of the kingdom in 2 kingdoms, that is kingdom Animalia. Right? So we are going to begin with the new kingdom, that is kingdom Animalia, which is very important. Many a times question are already there in the previous examinations of NTSC Stage 1. तो उसी topic से related हम आगे पढ़ेंगे that about the topic animal kingdom. So this is one kingdom which comprises the 5 kingdoms, that is kingdom Animalia, Plantae, Monera, Fungi and Protista, and in this we are beginning with this animal kingdom. Okay. Now, when we are saying the kingdom, that means they must have different phylums. We have learned about the taxons in the last class. So we know that taxonomic hierarchy, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Though we'll not go in so much detail, but then we should know that what are the features on which the classifications are based. See, if we talk about kingdom Animalia, that means all the animals present on this earth belongs to this kingdom, that is kingdom Animalia. Okay? So because we are classifying the organisms in different phylums in animal kingdom, so we should know the features on which the organisms are classified into different phylums. So before discussing the different phylums, we need to know few features on which the classifications are based. ठीक है? समझ आ रही बात सबको? वीडियो ऑन करने को बोला था मैंने. Please put your video on, everybody, throughout the session. This is my humble request to you, as if now. It could be changed. Okay? So, we are actually beginning our session with the different features on which the classification of animals are based. Okay? So, first feature on which the classification is based, that is level of organization in human beings, in living beings, sorry. It is the level of, just a minute. It is the level of organization in living beings. So basically, level of organization means that it is a structural differentiation. Means the organism is made up of one cell. More than one cell means when there is more than one cell, different cells are aggregate together to form the tissues. And whether the tissues are then processed to form the organs. And we know that different organs combine together to form the organ system of the body. So this is basically the level of organization present in different organisms, right? So first, if I say that cellular level of organization, that means the only cells are present in the organism. There is no tissue formed. Tissues are not formed, only cells are present. It could be unicellular. It could be more than one cell, that is multicellular. But what is tissue? Tissue means the aggregation of the cells to form a tissue, to form a particular task, to perform a particular task. लेकिन जब हम cellular level of organization की बात करते हैं, तो उस केस में cells तो present हैं, एक से ज़्यादा भी cell हो सकते हैं, but they are not aggregate to form the tissues. This is what we call it as cellular level of organization, and different types of cell could be present. That means different cells means there are more than one cells present and they could have different functions. When we'll discuss the phylum Porifera, this is one of the phylum Porifera, we'll come to know that there are different cells performing different functions. That is why we say even in the organisms which is having cellular level of organization, they have multiple cells performing multiple functions. ठीक बात है?
So that means, but the organism have only cellular level. They are not, the cells are not aggregate to form the tissues, right? So this is one level of organization. Moving on to next one, that is tissue level of organization. Again, when we say tissue level, cell is actually aggregate together to form the tissue in our organism. ठीक है, तो multicellular body cells organized tissue, but organs are absent. मतलब tissues are not processed to form the organs. Only tissue level of organization present. There is no organs formed. तो ऐसा level of organization किस में present होता है? One is Coelenterata. See, when we'll discuss the phylums, you'll come to know that the phylums are present in their progressive nature. Progressive means, अगर हम सिर्फ इस feature की बात करें, that is level of organization, तो I told you in the beginning that first phylum is Porifera. First phylum is Porifera, and Porifera have only cellular level of organization. आगे अगर हम बढ़ें, that is the next one, the second one, we'll find this is the Coelenterata phylum. Now in Coelenterata, cells are aggregate to form the tissues. है ना, तो यानी कि फाइलम ने प्रोग्रेस किया, पहले सिर्फ सेल्स प्रेजेंट थे फाइलम में और दूसरे फाइलम के एनिमल्स में टिश्यूज भी बन गए. दैट मीन्स द फाइलम्स आर प्रेजेंट इन दियर प्रोग्रेसिव नेचर. गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है सबको कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से व्हेन आई से प्रोग्रेसिव इन नेचर? ठीक है, फर्स्ट फाइलम में ओनली सेल्स आर प्रेजेंट, सेकेंड फाइलम Coelenterata, टिश्यूज आर ऑल्सो प्रेजेंट. नाउ देर इज वन मोर फाइलम दैट इज कॉल्ड एज Ctenophora. है ना, Ctenophora is again the phylum which comes after Coelenterata. This phylum is also having the tissue level of organization. ये बात ध्यान रखनी है हमको. Porifera is the phylum जिसमें this is the only phylum जिसमें cellular level of organization present है. तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा which of the following animal organism or animal has सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जरूरी नहीं है कि आपको वो पॉरीफेरा ऑप्शन दें. इट माइट बी नेसेसरी, दे कुड हैव गिवन द एग्जांपल्स, मींस द ऑर्गेनिजम्स व्हिच बिलोंग्स टू द पॉरीफेरा कुड बी इन द ऑप्शंस. सो यू शुड नो द एग्जांपल्स, दैट इज द पॉरीफेरेंस कौन से होते हैं. व्हेन वी विल डिस्कस द फाइलम पॉरीफेरा, देन आई विल लेट यू नो कि आपको कौन से एग्जांपल्स एज पॉरीफेरेंस याद रखने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको पॉरीफेरा उठा के दे दिया जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. हो सकता है कि आपको एक पॉरीफेरा दिया हो, बाकी तीनों और फाइलम के एग्जांपल्स दिए हो. तो यू शुड नो द बेसिक एग्जांपल्स. बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बट बेसिक एग्जांपल्स यू शुड नो. सो दैट एग्जांपल्स आई विल लेट यू नो व्हेन वी विल डिस्कस द फाइलम्स इन सेपरेट. ठीक है, समझ आ रही बात सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सिमिलरली सेल्स एग्रीगेट कहाँ हो गए? That is in the organisms which are coelenterates. ठीक है, the next phylum is Ctenophora, जिसमें भी tissue level of organization present है. आगे बढ़ लेते हैं. टिश्यू के बाद we have organ level of organization, मतलब टिश्यू प्रोसेस होके organs बन गए. The organisms have organ level of organization, है ना. So cells are organized into tissues and tissues into organ, but organ system are absent. टिश्यूज, सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हो गए, टिश्यू बना दिया, टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हो गए, ऑर्गन्स बना दिया, लेकिन अभी भी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम इज एब्सेंट. देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम. जैसे हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें, सो देयर आर मेनी ऑर्गन सिस्टम्स विच वी नो अबाउट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. so there is no such system exist in the organism. Yes, but organs are present, but organs are not organized to form the organ system. That you have to keep it in mind. ठीक है, तो ऐसा किस में प्रेजेंट होता है? Platyhelminths. Again, after Ctenophora, which phylums comes next is Platyhelminths. ठीक बात है, तो हमें ध्यान रखना है Platyhelminths have organ level of organization. तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फीचर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको उसमें या तो अगर वो डायरेक्टली पूछ रहे हैं, फाइलम की बात कर रहे हैं, तो विच ऑफ द फाइलम हैज ओनली द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तब आपको ऑप्शन में प्लैटीहेल्मिन्थ्स जरूर मिल जाएगा. अगर फाइलम की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि प्लैटीहेल्मिन्थ है, दैट वुड बी इन वन ऑफ द ऑप्शन.
ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू मार्क व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग, and definitely depending on that options are there, but you have to keep it in mind that organ level of organization is only present in case of the phylum Platyhelminths. ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं. That is organ system level of organization. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्गन सेल्स तो हमने बना लिए थे, टिश्यूज भी बना लिए थे, टिश्यूज भी ऑर्गेनाइज होके हमारी ऑर्गन्स बना दिए. अब यहाँ पे ऑर्गन, मेनी ऑफ द ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, टिश्यूज इनटू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम, है ना. बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलके ऑर्गन सिस्टम भी बना दिया. सो दिस इज द फर्स्ट फाइलम, दैट इज निमेटोडा. निमेटोडा को वी ऑल्सो कैन कॉल इज एज एस्कैल्मेंट्स, एस्कैल्मेंट्स. ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखनी है बात, हम इसको एस्कैल्मेंट्स भी बोल सकते हैं. तो ये इसमें जो है निमेटोडा और एस्कैल्मेंट्स इज वन एंड द सेम थिंग, एंड इस फाइलम से ही ऑर्गन सिस्टम भी बन गया. we'll discuss which type of organ system is present in Aschelminths when we'll discuss the phylum Aschelminths. As if now you have to keep it in mind that from this slide that poriferans have cellular level of organization. After that, coelentrates and ctenophorans, the two have tissue level of organization. After that, it comes platyhelminths, which have organ level of organization. After platyhelminths, what comes next is nematodes or aschelminths. So इसमें आपका ऑर्गन सिस्टम बन गया. और इसके बाद हम जितने भी फाइलम पढ़ेंगे आगे, फॉर एग्जाम्पल एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्म्स एंड देन द कॉर्डेटा, all have organ system level of organization. ठीक बात है, समझ आ रहा है सबको कि how you will study this feature in a different phylums. So you have to keep it in mind that which type of level of organization present in which phylum, and thereby you will come to know कि जितने भी उस phylum में organism है उसका वही level of organization है. Is it okay to everyone? ठीक है, तो बहुत बेसिक सा फीचर है, बट यू हैव टू कीप इट इन माइंड लिटिल कि अगर आपको देखो इसको ना याद रखने का एक तरीका है, ऐसे अलग अलग से पढ़ोगे ना तब भूल जाओगे. सबसे पहली चीज़ मैंने आपको एक सेशन में ये ज़रूर बताया होगा व्हेन वी वर डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर्स NTSC स्टेज 1 question papers, when such questions are asked from this topic. So I must have told you one thing, that you have to keep it in mind the phylum name in sequence. अगर आपको फाइलम का नाम सीक्वेंस में याद होगा तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लोगे कि कौन सा फीचर किस में प्रेजेंट है. वाई सो? बिकॉज अगेन आई विल से द सेम लाइन, बिकॉज द फाइलम्स प्रेजेंट आर इन प्रोग्रेसिव नेचर, है ना, क्योंकि फाइलम जितने भी प्रेजेंट है प्रोग्रेसिव नेचर में प्रेजेंट है. तो अगर आप फाइलम का नाम सीक्वेंस में याद करोगे आपको फीचर्स ज़रूर बहुत जल्दी याद हो जाएंगे. ठीक है, I'll write the names of the phylums after we'll finish the once we'll finish up with the features. I'll write the names all and tell you. Okay, so that was the first feature that we have discussed, that is the level of organization. ठीक है, next की बात कर लेते हैं, that is symmetry. Symmetry की बात कर लेते हैं. Symmetry is again a feature, right? So symmetry is again a feature. Now symmetry अब two types की हो सकती हैं, right? That is bilateral symmetry and radial symmetry. One more it could be there that could refer as asymmetrical, है ना. एक हम इसको भी पढ़ सकते हैं. We can be considered this also as the symmetry. Asymmetrical means वो organism जो कि halves में divide ही नहीं हो सकते. और इसमें कौन से organisms आएंगे? It will be the poriferans, the first phylum that we were talking about. In case of level of organization, तो हमें ध्यान रखना है. तो poriferans are the organisms which are asymmetrical. Otherwise, we have two types of symmetry, radial symmetry and bilateral symmetry, है ना. तो अब देखो ध्यान रखनी है, radial symmetry जो है that is primitive symmetry. क्या बोलते हैं इसको? Primitive symmetry. And the bilateral is the advanced symmetry. ठीक है, एक बात हमको ये ध्यान रखनी है, इट इज प्रिमिटिव, इट इज एडवांस. अब देखो रेडियल की बात करेंगे तो लिम्स एंड ऑर्गन्स अकर्स ऑल अराउंड द सेंट्रल एक्सिस,
है ना. लिम्स की बात करें तो मतलब अपेंडेजेस जो कि बॉडी से बाहर निकले हुए होते हैं, प्रोट्रूटेड आउट स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना. तो लिम्स और ऑर्गन्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, if they are not present in pairs, they are present central, in around all the axis, तब उस केस की सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं. ठीक है. एंड इफ लिम्स एंड ऑर्गन्स आर पेयर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हमारा बायलेटरल सिमेट्री है, वी हैव 2 हैंड्स, वी हैव 2 लेग्स, सो वी हैव एक्चुअली पेयर्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड. सपोज एक बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज कॉकरोच, है ना. तो कॉकरोच आप सभी के घर में जरूर आपने कभी ना कभी देखा होगा, बट नेचुरल सी बात है. तो व्हेन यू विल सी दैट, यू विल फाइंड द पेयर्ड अपेंडेजेस ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लेटरल अपेंडेजेस. तो अगर दैट इज पेयर्ड, तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री. ठीक है. तो उसमें लिम्स एंड ऑर्गन्स आर पेयर्ड. तो दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेफलाइजेशन प्रेजेंट इन केस ऑफ बायलेटरल सिमेट्री and cephalization is absent in case of radial symmetry. So what is cephalization? इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, है ना. देखो, cephalization का मतलब होता है, cephal means head, right, head. तो that means development of head into the anterior region of the body. हम अगर अपनी बात करें तो हमारा हेड, दिस इज अवर हेड, एंटीरियर रीजन, वी हैव सेफलाइजेशन. तो बेसिकली सेफलाइजेशन मीन्स development of head into the anterior region of the body, है ना. अब देखो, खुद ही दिमाग लगाओ, समझने की बात है. अगर बायलेटरल सिमेट्री होगी तभी तो सेफलाइजेशन होगा. अगर हमारे पास रेडियल सिमेट्री है तो वो तो इट इज एक्चुअली, इट इज नॉट, इट इज द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट रेडियली. तो रेडियल जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें हेड का तो सवाल ही नहीं होता. सो दैट इज व्हाई सेफलाइजेशन इज एब्सेंट इन केस इफ द ऑर्गेनिज्म इज हैविंग रेडियल सिमेट्री. ठीक है. तो ये ध्यान रखनी है, वर्ड इज इंपॉर्टेंट. सेफलाइजेशन क्वेश्चन आपको ऐसे दे सकते हैं, इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेफलाइजेशन इज प्रेजेंट. तो अगर आपको सेफलाइजेशन का मतलब मालूम होगा तभी आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे. सो बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ हेड इनटू द एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी इज द सेफलाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, that is the body can be divided into 2 equal halves by only one plane called mid sagittal line. देखो, bilateral अगर सिमेट्री होगी ना तो ऑर्गेनिज्म में पेयर्स में प्रेजेंट है. सपोज दिस इज ऑर्गेनिज्म, इफ वी जस्ट pass one vertical line through the central axis, animal will divide into 2 equal halves. This line is actually called as mid sagittal line. ठीक है. तो अगर हम सिर्फ एक प्लेन और लाइन, अगर हम सिर्फ एक लाइन और प्लेन से एनिमल को कट कर दें, इट विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, आइडेंटिकल हाफ्स. सो दैट इज व्हाट वी कैन डू इन केस ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज हैविंग बायलेटरल सिमेट्री. ठीक है. ऐसा लेकिन रेडियल सिमेट्री के केस में नहीं होगा. समझ आ रही है बात? मतलब द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर देन इक्वल हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस. मतलब हम बहुत तरीके से ऑर्गेनिज्म को कट कर सकते हैं बाय पासिंग मेनी प्लेन्स थ्रू द सेंट्रल एक्सिस. ठीक है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. इन केस ऑफ रेडियल सिमेट्री, सो दिस इज 3 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री. ठीक है. अब देखो, ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला है, हाइड्रा एंड स्टारफिश. ठीक है. तो हाइड्रा इज वन ऑफ द सिलेंट्रेट जो हमने अभी देखा था, विच इज हैविंग ओनली टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. एंड अगर हम स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश इज वन ऑफ द इकाइनोडर्म. वील डिस्कस लेटर दैट इकाइनोडर्म्स हैव रेडियल सिमेट्री. ठीक है. प्लीज पुट योर वीडियो ऑन एवरीबडी. वीडियो ऑन रखो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल ऑफ यू. ठीक है. Next is the bilateral symmetry. Fish, we know that. Frog, one of the amphibian. Earthworm, one of the annelid. Humans, that is chordates. है ना. तो fish, frog, earthworm and human, all these are having bilateral symmetry, right? So this is the difference and this is one of the feature
on which the organisms has been classified, that which is having radial and which is having the bilateral symmetry. When we'll discuss the phylum as a whole, then we'll discuss that which phylum has radial symmetry. If the phylum has radial symmetry, that means all the organisms present in the phylum has radial symmetry. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया, पॉरीफेरेंस are asymmetrical, they don't have any kind of symmetry. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, that is we have discussed coelentrates and ctenophorans. These have radial symmetry. As we will discuss the different phylums, we will discuss that which kind of symmetry is present in which phylum. But as if now, again I'll say the same line, the phylums present in progressive nature. Asymmetrical is the very basic one symmetry, तो इसलिए पॉरीफेरेंस में present है. आगे हम बढ़ेंगे, coelentrata and ctenophora, they comes next to poriferans. Again it is having the radial symmetry. ठीक है, तो हम phylum का नाम अच्छे से याद रखेंगे in sequence, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इन फीचर्स को याद रखने में. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट फीचर इज germ or germinal layers. Now germ or germinal layers, there are actually the 3 germinal layers present, है ना? There are 3 germinal layers present. अब देखो 3 जर्माइनल लेयर्स की बात करें तो कौन कौन सी 3 जर्माइनल लेयर्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स में, ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है, तो वन इज एक्टोडर्म, अनदर इज एंडोडर्म and the third one is mesoderm. So these are the 3 germinal layers present in the organism, and you know, presence and absence of this, the presence and the absence of how many layers are present in an organism, there are the types of organisms present. But before discussing that, I wanted to tell you one more thing, that these 3 layers are called as germinal layers. Why it is so? मतलब हम इन तीनों लेयर्स को जर्माइनल लेयर्स क्यों बोलते हैं, अब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट फॉर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, यू नो, व्हेन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, so this is a very initial stage when these 3 germinal layers are formed. Now why these layers are called as germinal layers? Because these are the 3 layers from which all the organs of the body are going to develop. So this becomes the germinal layer because this gives rise to all the organs of the body later. तभी आपने अगर थोड़ा सा लाइफ प्रोसेस 10th क्लास में स्टार्ट किया होगा ज़रूर आप सभी ने, तो उसमें you must have studied that this organ is ectodermal in origin, this is mesodermal in origin, this is endodermal in origin. So what does that mean, that it is endoderm, mesoderm or ectodermal in origin? That means that organ is developed from these 3 layers. Either it will be ectodermal in origin or endodermal in origin or mesodermal in origin. That is why we call these 3 layers as germinal layers. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है that all the organs present in the body are actually going to form from these 3 layers. That is why we call these layers are germinal layers. Is it okay to everyone? समझ आ रही है कहानी सबको? Is this story interesting? Okay, but फिर भी most of you didn't turn up your video. चलिए, that we'll discuss later after the class. But then, as if now, please do keep it in mind that these are the 3 germinal layers present. Now, on the basis of this, that how many layers are present in an organism? हमारे पास 2 टाइप्स के एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर ऑर्गेनिज्म में हैव दीज 2 जर्माइनल लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. एक बात और भी ध्यान रखेंगे हम, एक्टोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है? डू कीप इट इन माइंड, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड एंडोडर्म इज द इनर मोस्ट लेयर. तो ये बात भी ध्यान रखना है हमको. एंड ऑब्वियसली मेसोडर्म इज द मिडिल वन. ठीक है, तो ये मिडिल लेयर है हमारी. तो अगर ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ 2 लेयर्स हो, दैट इज द आउटर मोस्ट एक्टोडर्म एंड द इनर मोस्ट एंडोडर्म,
तब उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म। इस केस में मीजोडर्म इज एब्सेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है। तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, एज अ नेम सजेस्ट डिप्लोब्लास्टिक, डाई मीन्स टू, है ना, सो दीज आर हैविंग टू लेयर्स ओनली, द आउटर मोस्ट एंड द इनर मोस्ट, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो हमको ध्यान रखना है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ ये दो लेयर्स प्रेजेंट हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगेन इफ वी टॉक अबाउट द फाइलम्स कि किन में ऐसा होता है, कौन से फाइलम्स में, कौन से ऑर्गेनिजम्स में ओनली द टू लेयर्स आर प्रेजेंट, हेंस द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, है ना। तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, दैट इज पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा की बात करें, सिलिंट्रेटा की बात करें, है ना, टेनोफोरा की बात करें, आई टोल्ड यू दैट, है ना। तो इन तीनों में विच काइंड ऑफ द एनिमल्स प्रेजेंट, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स प्रेजेंट, यानी कि देर आर टू जर्माइनल लेयर्स, all the cells and the tissues are being developed from these two germinal layers, that is ectoderm and endoderm। ठीक है, आगे आ जाते हैं, that is triploblastic animals। ठीक है, देखो as the name suggests, triploblastic यानी कि तीनों layers present हैं, है ना। Animals having three germinal layers, outer ectoderm, middle mesoderm and the inner endoderm, these are triploblastic animals। So ऐसे organisms में, ऐसे animals में ये तीनों ही layer present रहेंगी, that is outer ectoderm, innermost endoderm and the middle one is mesoderm। तो ऐसे organisms जिसमें तीनों present होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, triploblastic animals। तो इसके बाद हम बात करते हैं टेनोफोरा के बाद, मैंने आपको बताया था व्हाट कम्स नेक्स्ट इज प्लैटीहेल्मिन्थ फाइलम, है ना। तो प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके जितने भी फाइलम हैं अप टिल कॉर्डेटा, ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ऑल इज हैविंग थ्री जर्माइनल लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? यस तो बताओ फिर एस्केल्डमिन्स में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टेल मी। एस्केल्डमिन्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। यस ईशानवी, व्हाट यू सेड बेटा? नो, इट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एस्केल्डमिन्स और नेमाटोड्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गन लेवल आपकी किस में प्रेजेंट है, प्लैटीहेल्मिन्स में। स्टेनोफोरा एंड सिलिंट्रेटा में क्या प्रेजेंट है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉरीफेरा में दे हैव, दिस इज द ओनली फाइलम इन विच सेल्स आर प्रेजेंट एंड हेंस सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यस बेटा। हायर एनिमल्स मीन्स द एडवांस एनिमल्स। देखो एक लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच इज एक्चुअली वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, है ना। हायर एनिमल्स मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव अ कंप्लीट ऑर्गन डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलोम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड ऑन दिस फीचर, तो ये हमें अच्छे से पढ़ना है। एंड स्पेसिफिकली कौन से ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का सिलोम होता है ये हमको याद रखना है। बेसिक चीज आपको याद रखनी है, बहुत डिटेल में आई विल नॉट गो, but then you should know first what is coelom. On the basis of coelom, you know, there are different types of coelom present, and on the basis of coelom we can have different types of organisms even, or animals even. So what is coelom? Actually I'm writing here, please do write in your notebooks as well. ठीक है, basically it is a fluid filled cavity. It is a fluid filled cavity present between body wall and gut wall, lined with mesoderm layer internally and externally.
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है. इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, मतलब एक कैविटी है जिसमें फ्लूइड फिल्ड है, एंड इट इज वेयर इट इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल and the gut wall. Gut means the alimentary canal, the wall of the alimentary canal which runs in the middle of the organism. We know that, है ना. तो basically body wall, suppose I'm just making a cartoonish way to explain you. Suppose this is the body wall. Body wall means the outermost wall, है ना. तो ये हम इसको ectoderm मान लेते हैं, और this is the gut wall, तो it becomes the endoderm, right? And over here lies the mesoderm. Mesoderm is present both ways, outward and inward side. So this becomes our this is a space that becomes our coelom, which is filled with the fluid body cavity. So basically it is a cavity which is fluid filled cavity present between the body wall and the gut wall, lined internally with mesoderm and externally with mesoderm. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान रखना है. Now on the presence and absence of this, we can have, it is not necessary that coelom is present in every organism, especially in case of lower organisms. ठीक है. तो अगर हम एसिलोमेट की बात करें, देखो एक बात हमें और भी ध्यान रखना है. बायो में अगर किसी वर्ड के आगे ए हम लगा रहे हैं, किसी बायोलॉजिकल वर्ड के आगे स्पेशली, इफ वी आर पुटिंग ए, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना. तो हम इफ यू आर सेइंग एसिलोमेट, दैट मीन्स नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट और नो सिलोम प्रेजेंट. ठीक है, तो ध्यान रखनी है हमको ये बात. No body cavity present in case of acoelomates. I mean, what I'm trying to say, if we are saying that there is acoelom, that means the organisms are acoelomates. The organisms don't have body cavity. ठीक है. तो ये हम कौन से फाइलम में बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर एसिलोमेट्स. स्टार्टिंग के जो फाइलम हम बात कर रहे थे, जैसे पॉरीफेरा है, आपका सिलेंट्रेटा है, टेनोफोरा है, प्लैटीहेल्मिन्स है, दीज ऑल आर एसिलोमेट्स organisms. There is no body cavity present in those organisms belongs to all these four phylums. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज सीडोसिलोमेट. अब देखो सीडो का क्या मतलब होता है. सीडो मीन्स फॉल्स, है ना, एंड दिस इज बट ऑब्वियस है सिलोम. सो सीडो मीन्स फॉल्स, दैट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स हैव फॉल्स सिलोम. व्हाट डज दैट मीन, फॉल्स सिलोम? दैट मीन्स एक्चुअली इट इज not lined with mesoderm layer. It is lined with which layer? It is lined with endoderm layer. तो ये तो हमने अभी पढ़ा कि सिलोम का बेसिक फीचर क्या है. It should be lined internally, externally with mesoderm layer. If it is not lined with mesoderm layer, that means it is a false coelom. ठीक है. तो अब हमें यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि सीडोसिलोम प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम उन ऑर्गेनिजम्स को सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं. तो अब आफ्टर प्लैटीहेल्मिन्स, आई टोल्ड यू दैट पॉरीफेरेंस, सिलेंट्रेट्स, टेनोफोरेंस, प्लैटीहेल्मिन्स, all these are having एसिलोम, दे आर एसिलोमेट्स. आप देखो, अगर आपने फाइलम को सीक्वेंस में लर्न किया होगा, आपको डेफिनेटली पता होगा कि प्लैटीहेल्मिन्स के बाद व्हाट कम्स नेक्स्ट इज निमैटोड्स और एस्केल्मिन्स. ठीक बात है. इट कम्स आफ्टर दैट, प्लैटीहेल्मिन्स के बाद. तो एस्केल्मिन्स में एस्केल्मिन्स हैव और निमैटोड्स हैव सीडोसिलोम. ठीक है. तो निमैटोड्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे आपके, उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज दे आर सीडोसिलोमेट्स. ठीक है. अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, सीक्वेंस में लर्न करोगे, फीचर्स 2 मिनट में निकाल दोगे. कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके ऑप्शंस में दिया होगा, यू जस्ट रिकॉल इट द सीक्वेंस एंड यू विल रीच टू द राइट आंसर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज सीलोमेट. नाम से ही पता चल रहा है, यू सिलोमेट मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू इन केस ऑफ बायो, है ना. सो दैट मीन्स दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी, दे हैव ट्रू
body cavity. What does that mean, true body cavity? भाई true body cavity means क्या? True coelom, मतलब जिसकी हम बात कर रहे थे. It should line up with the mesoderm layer, internally, externally, fluid filled space, है ना? Present where? Between the body wall and the gut wall. ठीक बात है. So this is and the organisms belongs are the pseudocoelomates and the organisms are pseudocoelom. They are having coelom. ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सिलोमेट्स बोलेंगे. ठीक है, तो अब हम अगर तुम लोगों को फिर वही बात की, अगर फाइलम का सीक्वेंस पता है, एस्केलमेंट्स के बाद कौन सा फाइलम आता है? यस, कौन बताएगा? व्हाट कम्स नेक्स्ट? यस बेटा. Yes, Alish is absolutely correct. What comes next is Annelida. Annelida are commonly called as segmented worms. है ना, इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं और डिटेल में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे. बट एज इफ नाउ एनालिड्स से हमारे पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और उसके बाद जितने भी हमारे पास फाइलम्स हैं दे आर हैविंग the coelom and they are called as pseudocoelomates. So अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है, वेरी सिंपल वन, that from which of the following organisms true body cavity starts, है ना. तो अगर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ऑप्शंस में देयर इज वन ऑप्शन विच इज वन ऑफ द एनालिड, है ना. तो थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट बनाना होगा क्वेश्चन तो आपको ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम भी दे सकते हैं. बहुत डिटेल में नहीं आते इतना क्वेश्चंस. विल डिस्कस थोड़ा सा ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से फाइलम को बिलोंग करता है. विल लर्न दैट, बट देन यू शुड बी प्रिपेयर कि इस टाइप से क्वेश्चंस स्टेज 1 में आ सकते हैं. ठीक है, तो हमको अकॉर्डिंगली पढ़ना है कि ट्रू बॉडी कैविटी कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन से फाइलम से स्टार्ट होती है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है ना. कौन से फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म में ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, तो इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है. सो यू हैव टू लर्न इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो दीज आर दी 3 different types of coelom present on the basis of which organisms are classified into different phylums. ठीक है, समझ आ रही है बात सबको? यस, चलिए आगे बढ़े. यस, सो देखो अभी तो अगर मैं बोलूं दीज वर द फीचर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, है ना. But you know there are many other features that can we have based on which classification is there. मैंने उसमें 3-4 फीचर ही रखे हैं, जैसे सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम, है ना. 2-3 फीचर्स आप उसको और भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है ऑर्गेनिज्म में, है ना. एसेक्सुअल होता है या फिर सेक्सुअल होता है या दोनों ही होते हैं, इसकी ये भी आपको पता होना चाहिए. बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट देन यू शुड नो दैट विच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, एसेक्सुअल है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं. लेट मी ऐड अ न्यू पेज बिफोर, जस्ट अ मिनट, है ना. तो एक हमारा क्या था, दैट इज I have told you one of the feature could be reproduction, कि organism में किस टाइप का reproduction है. Another feature could be fertilization. तो fertilization के केस में कि animal में self fertilization है या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, ये भी एक फीचर आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, वन मोर कुड बी देयर, एनिमल यूनिसेक्सुअल है. I mean, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि which of the following group of organisms belongs to unisexual or they are unisexual, है ना. यूनिसेक्सुअल है या फिर बाइसेक्सुअल है ना. यूनिसेक्सुअल को we also called as dioecious, है ना, और बाइसेक्सुअल को we also called as monoecious. What does that mean? Bisexual means or monoecious means both the sex organs are present in the same individual. That means female and male sex organs दोनों टाइप के ऑर्गन्स अगर एक ही इंडिविजुअल में हो तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या फिर मोनोशियस बोलते हैं. देयर इज वन मोर वर्ड दैट कैन बी देयर इन द क्वेश्चन, यू शुड नो अबाउट द वर्ड, दैट इज कॉल्ड एज hermaphrodite.
ठीक है, आपने नहीं पढ़ा होगा अभी, आई एम 100% श्योर, बट देन दिस इज द वर्ड दैट कैन बी योर इन योर क्वेश्चन. सिंपल आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज हर्माफ्रोडाइट, और टिपिकल बनाना होगा क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. आपकी एक ऑप्शन में आई मीन 4 ऑप्शंस होंगे, तो उसमें ग्रुप और ऑर्गेनिजम्स दिए होंगे, तो आपको ये बताना होगा कि कौन सा ग्रुप बिलोंग्स टू दी हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स. दैट मीन्स कौन सा ग्रुप बिलोंग टू दी बाइसेक्सुअल और मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स. सो दीज 3 वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग, दैट फीमेल एंड मेल सेक्स आर प्रेजेंट इन दी सेम इंडिविजुअल. ठीक है, तो ध्यान रखनी है हमको ये बात, that is female and male sex organs are present in the same individual. ठीक है, चलो यहाँ आ जाते हैं. अब यूनिसेक्सुअल की बात करें तो देखो बिल्कुल ऑपोजिट कहानी है ना. the organism have either male और female sex organs, दोनों ही present नहीं होंगे. we have sexes are separate in this case sexes are separate. तो ये ध्यान रखनी है बात हमको. तो एक फीचर ये भी इसके बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया हुआ है. ठीक है, नाउ वन मोर फीचर कुड बी देयर. व्हाट इज दैट? दैट इज द बॉडी प्लान. बॉडी प्लान मीन्स कि ऑर्गेनिजम्स के पास कितना ओपनिंग है, 1 ओपनिंग और 2 ओपनिंग. देखो इसके बेसिस पे ना हम अगेन वी हैव 2 कैटेगरीज, दैट ईदर इट विल बी ब्लाइंड सैक प्लान और इट विल बी ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान. ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान. व्हाट डज दैट मीन? ब्लाइंड सैक प्लान और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान. मतलब कि देखो ब्लाइंड सैक प्लान का मतलब है कि इस टाइप का प्लान, मतलब organism have only 1 opening. Sorry, organism have only 1 opening, and that opening will serve as both mouth and anus. क्योंकि ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं है अभी. ब्लाइंड सैक प्लान मीन्स कि एक तरफ से देर इज नो ओपनिंग, देर इज ओनली 1 ओपनिंग, एंड बोथ विल वहीं से चीजें अंदर आ रही है, वहीं से चीजें बाहर जा रही है. सो दैट काइंड ऑफ प्लान इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सैक प्लान. नाउ इसकी बात कर लेते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान. इधर देखो, दिख रहा है सबको यहाँ पे? यस, इज इट ओपन? इज इट क्लियर? यू कैन सी देयर. ओके, तो इफ द ऑर्गेनिज्म हैव 2 ओपनिंग, देखो ये ट्यूब है ना, एक ट्यूब विद इन ट्यूब. This is called as tube within tube plan. That means organism have 2 opening. One is serving as mouth and the other is serving as anus. So this is tube within tube plan. तो इसकी basis पे भी हम organism को classify कर सकते हैं. जैसे again if we talk about the different phylums. तो first phylum we have Poriferans. तो Poriferans again very beginning of the phylum. उसके अंदर हम पढ़ेंगे when we'll discuss this. They have only blind sac plan. They have only 1 opening. ठीक है. Similarly that is present in case of coelentrates. So this is the feature in which the organisms have been classified into that phylum Poriferans or coelentrates. This is again a feature in which the animals are classified. So इसकी basis पे भी classification है, आपको पता होना चाहिए. What does body plan means? There are 2 types of plan, blind sac plan and the tube within tube plan. समझ आ रही कहानी सबको? Yes? Are you getting it all? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन इज देयर, एंड वील हैव मोर. वील डिस्कस once we'll discuss the different phylums. We'll discuss. So this is about the features on which the classification is based. Now we'll actually discuss the different phylums. And the first phylum, we'll begin with the non-chordates and then we'll jump to the chordates once we finish with the non-chordates वाला part. ठीक है? तो as if now the first phylum in non-chordates is Protozoa. ठीक है? कौन सा phylum है हमारे पास? It is the Protozoa. तो प्रोटोजोआ की बात करें, वी नो दैट प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं पढ़ना है हमको, बट बेसिक फीचर्स यू शुड नो.
They are the unicellular prokaryotic organism. They have different types of locomotory organ. Cilia भी present है, flagella भी है, pseudopodia means false feet. Now there is one organism you must be knowing, that is amoeba. Amoeba is one of the protozoan only, having irregular shape like this. तो false feet की बात करें, false feet means actually there is no feet present, but the body of the shape of the amoeba is irregular. So once, they have to capture the food or they have to locomote, so this feet is being formed to engulf the food particle or for locomotion. So this feet is called as false feet or pseudopodia. Pseudo means again the same thing, that is false, है ना? And podia means feet. So they have false feet. With the help of this structure, they can even capture the food particle or even can locomote. ठीक है? Some protozoans also have cilia and flagella for locomotion. जैसे for example Euglena, for example Paramecium. ठीक है? Next is nutrition is of different types like holozoic, holophytic and mixotrophic. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एनटीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. कौन बताएगा आप में से कौन से ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोटोजोन है हैव मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? यस, व्हाट इज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? एलिश आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया, इट इज यूग्लेना. तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज मिक्सोट्रॉफिक? एनीबडी इन क्लास? मैंने जरूर यस है ना. ऑर्गेनिज्म का अगर ऑटोट्रॉपिक मोड भी है उसके पास न्यूट्रिशन का, एंड मिक्स एंड द हेट्रोट्रॉफिक मोड भी है, तब उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कि दैट दिस ऑर्गेनिज्म इज हैविंग मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऐसा क्यों होता है यूग्लिना में? बिकॉज यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ये भी बात मैंने आपको एक सेशन में जरूर बताई होगी, दैट इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ये इस चीज पे एनटीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो हमें ध्यान रखना है. व्हाई प्लांट सेल? बिकॉज इट हैज सेल वॉल. सॉरी, बिकॉज जस्ट अ मिनट, दिस वाज नॉट द रीजन. बताओ मुझे, प्लांट सेल क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट हैज प्लास्टिड्स एंड बिकॉज इट लैक्स सेल वॉल, इट इज एनिमल सेल. ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है बात हमें. भाई किसी भी सेल में अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली विल कंसिडर इट एज एनिमल सेल, एंड एट दैट टाइम इट कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. ठीक है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट है. वी नो दैट प्लास्टिड इज द सेल ऑर्गेनल्स विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल ओनली, एंड दे कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ photosynthesis, hence autotrophic in nature. Hence, because they can perform both the type of nutrition, that is autotrophic and the heterotrophic, they have mixotrophic mode of nutrition. So holozoic, holophytic, mixotrophic, any type of nutrition can exist in different type of protozoans. जैसे अगर हमने अमीबा की बात करी तो अमीबा has which kind of nutrition? This is the unicellular organisms which undergoes holozoic mode of nutrition. That means it takes the food completely, and then inside the body of the organism the food is digested with the help of the digestive enzyme secreted inside the body. ठीक है, so that is holozoic mode of nutrition. समझ आ रही कहानी सबको? Yes? Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट इज डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर. तो अब देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, एक ही सेल का तो है ऑर्गेनिज्म, तो डाइजेशन मस्ट बी इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर ही होगा, एंड इट टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल. तो अगर आपने क्लास 10th में आप सभी हो, आपने सबने लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एंड यू मस्ट हैव गॉन थ्रू न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज अमीबा. पढ़ा है सबने? यस और नो? Yes, ma'am. है ना. तो उसमें आपने जरूर देखा होगा that when forming the pseudopodia, food is engulfed and then the food vacuole appears, and inside the food vacuole the food is digested, है ना,
because the enzymes are being transferred there, and then once the food is digested inside the food vacuole, the food vacuole is disappeared and it's been utilized by the organism. ठीक है, तो फूड कहाँ पे डाइजेशन होगा? फूड वैक्यूल में. ये ध्यान रखनी है बात. क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. दैट इज एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन अकर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. भाई एक सेल का तो बना है ऑर्गेनिज्म, तो बट नेचुरल सी बात है कि एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, है ना, सिंपल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का हो सकता है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी. ठीक है, ध्यान रखनी है. प्रोटोजोअन्स को हम इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है. प्रोटोजोअन्स को हम क्या बोलते हैं? इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स. क्यों बोलते हैं? कौन बताएगा मुझे? यस, प्रोटोजोअन्स आर कॉल्ड एज इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स. व्हाई सो? बिकॉज यस, yes, Samriddhi is right, because actually one cell divides into two. Parent cells is actually dividing into two, form the two daughter cells. So basically they are immortal cells. Parents कोई die थोड़ी ना हुआ, they divide to form the two daughter cells. So that is why we considered protozoans as immortal organisms with the process of binary fission. बात समझ में आ रही है? तो because parents are dividing to form the two daughter cells, so parents are not dying actually, they are dividing themselves to form the two daughter cells. Hence they are called as the immortal organisms. ठीक है, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ अगर मैं आपको पूछूं तो आप क्या आंसर करोगे? यस, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ. स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड एज प्रोटोजोलॉजी. ठीक है, ध्यान रखनी है ये बात. एंड ये देखो नाम से पता चल रहा है ना, प्रोटो मीन्स वेरी प्रिमिटिव. इनको हम प्रिमिटिव एनिमल्स बोलते हैं. Proto means primitive, zoa means animals. So they are primitive animals. Hence the study is protozoology. Study of animals is zoology. We know that. है ना? So basically they are called as primitive animals. Study of protozoa is protozoology. तो ये ध्यान रखना है हमें. थोड़े से points protozoa के बारे में. Question can be asked. Different examples are there. Amoeba is there, Euglena, Paramecium. Right? We have different examples जो कि आपको ध्यान रखने हैं फॉर योर एग्जाम. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज दी पॉरीफेरेंस. अब देखो मैं बार बार थ्रू आउट द सेशन आई हैव स्पीक सो मेनी टाइम्स अबाउट द पॉरीफेरेंस. This is the first phylum which have actually multicellular level of organization. Though the tissues are not formed as we have seen earlier, they have only cellular level of organization. है ना? तो अब देखो अगर हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करें, यहाँ पे सारे फीचर्स बिल्कुल बेसिक फीचर जो है दैट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू पॉरीफेरेंस. जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल टेल यू दीज फीचर्स आल्सो व्हिच इज प्रेजेंट. बेसिक फीचर की बात करें, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सिमेट्री की बात करें, आई हैव टोल्ड यू देयर आल्सो दे आर एसिमेट्रिकल, है ना. और बात कर लेते हैं, दे हैव विच काइंड ऑफ बॉडी प्लान? दे हैव ब्लाइंड सैक प्लान. उनके पास सिर्फ वन ओपनिंग होती है. विल डिस्कस दैट इन अ मिनट. ठीक है, अगेन आगे बात कर लेते हैं. और हमने क्या फीचर डिस्कस किए? रिप्रोडक्शन का बोला था मैंने आपको. तो रिप्रोडक्शन इनमें दोनों टाइप का होता है. एसेक्सुअल भी होता है एंड सेक्सुअल भी होता है. आई गेस दिस पॉइंट इज मस्ट बी गिवन हियर. इफ इट इज नॉट, प्लीज डू राइट रिप्रोडक्शन बोथ टाइप्स. लिख लो इसको, रिप्रोडक्शन बोथ टाइप्स. ठीक है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी होता है. राइट, तो प्लीज डू राइट रिप्रोडक्शन बोथ टाइप्स, asexual and sexual. Body plan, blind sac plan. Why blind sac plan? Because it has only one opening. ठीक है, एंड उसकी बात कर लेते हैं. यूनिसेल्यूलर आई मीन यूनिसेक्सुअल होते हैं या बायसेक्सुअल होते हैं. देखो ये गिवन है यहाँ पे, दे आर हर्माफ्रोडाइट्स. कैसे होते हैं हर्माफ्रोडाइट्स? मैंने आपको बताया था. They are bisexual or they are monoecious. That means both the sexes are present in the same individual. So they are hermaphrodites. ठीक है, तो बेसिक फीचर्स बिल्कुल स्टार्टिंग के जो है, these are all present in the poriferans because this is the first phylum which have multicellular level of organization. ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं हम. So they are pore bearing organisms.
इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, देखो इसलिए विथ पोरस बॉडी, and they are commonly called as sponges. Very important point. They are commonly called as sponges. They have pores in their body, hence they are porous. ठीक है, they are yes बेटा, yes बेटा, absolutely. Hermaphrodite means yes, asexual reproduction. ठीक बात है. देखो जरूरी नहीं है कि अगर ऑर्गेनिज्म में दोनों टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं सो दे विल अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर सिसाइल एंड सिडेंट्री. मतलब दिस सिसाइल, दे आर रिमेन्स टू दियर, सेडेंट्री रिमेन्स टू दियर सबस्ट्रेटम. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है. बॉडी परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया. बॉडी में बहुत सारे पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं. आई विल मेक अ डायग्राम एंड शो इट टू यू दैट हाउ इट इज प्रेजेंट लेटर. फर्स्ट वील अंडरस्टैंड द फीचर्स. which opens into a canal system having canals and chambers lined with quanocytes. बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स बोलते हैं, जिनमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, इसलिए उनको हम फ्लैजिलेटेड सेल्स भी बोल सकते हैं. एंड हैव अ लार्ज साइज वाटर आउटलेट ऑस्क्यूला, है ना, और ऑस्क्यूला प्रेजेंट होता है विच इज एन आउटलेट. तो पानी यहाँ से बाहर जाता है और ऑस्टिया इज एन इनलेट एंड पानी यहाँ से अंदर आता है. तो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पॉरीफेरेंस एंड एक्चुअली दिस इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच इज पॉरीफेरन, और आपको किसी फाइलम में नहीं मिलेगा. और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम. ध्यान रखना है, व्हेन इट सेइंग इट इज ओपन्स इनटू अ कैनाल सिस्टम, दैट मीन्स इट इज अ water canal system. It is a specific feature of the phylum Porifera. मतलब कि जितने भी organisms Porifera में present हैं और Poriferans हैं, सभी में water canal system जरूर present होगा. ये बात हमको ध्यान रखनी है अच्छे से. और किसी ऑर्गेनिज्म के किसी भी फाइलम में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ पॉरीफेरेंस में प्रेजेंट होता है, तो हमको ध्यान रखनी है ये बात. Their cavity is called as spongiceal. कैसे याद रखोगे ये बात, देखो किसकी कैविटी है, स्पॉन्जिस की कैविटी है. हम कॉमनली इनको स्पॉन्जिस बोल रहे हैं ना, तो कैविटी किसकी है, स्पॉन्जिस की है. सील का मतलब क्या होता है, कैविटी. तो hence it is called as spongiceal because it is present in sponges. Endoskeleton is made up of needle-like spicules, है ना, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका. तो इनकी बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या है, स्पीक्यूल्स, जो कि किस चीज से बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के भी हो सकते हैं और सिलिका के भी हो सकते हैं. ध्यान रखना है हमको, बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ दी सिलिक्यूल्स, स्पीक्यूल्स and the spongin fibers, and the spicules could be of two types. It could be made up of calcium carbonate and silica. ठीक है, so these were some features that is present in the organisms which are poriferans. One thing I wanted to tell you, should I move on to the next slide? Yes, yes beta, I wanted to explain something to all of you. अब देखो, मैं पॉरीफेरन की बात कर रही थी आपसे. एक्चुअली एक बेसिक प्लान इसका जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है. ठीक है, कुछ इस टाइप का प्लान होता है ऑर्गेनिज्म का. इन केस ऑफ दी स्पॉन्जेस और पॉरीफेरेंस, बॉडी में क्या प्रेजेंट है, इट इज एक्चुअली डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. एंड द इनर वाला जो लेयर है इट इज एंडोडर्म, आउटर वाला लेयर इज एक्टोडर्म. ठीक है, एंड दिस कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, ये कौन सी कैविटी है, दिस इज स्पंजोसील. ये हमने अभी डिस्कस किया था फीचर में, that the cavity of the organisms is called as spongocoel because seal is the cavity, sponge is the organism, spongocoel. ठीक है, there are many pores present on the organism, hence it has a porous surface or porous body. ये बात ध्यान रखनी है हमको. Throughout the body pores are present, और इन pores को हम क्या बोलते हैं, this is called as ostia.
we have written in that feature also that they have a porous body. Inlets क्यों बोल रहे हैं in ostia को? Because this is the pores only from where the water comes inside the organism. ठीक है, तो there are many ostia present, there are many inlets present in the organism. Now this cavity is the spongiceal. Line this cavity are the cells. These are the collar cells, है ना. I will not go into detail, बस इतना ध्यान रखना है अभी आपको that these are the actually cells present, जिसको हम क्या बोलते हैं, choanocytes. Because this flagella is there, hence this is also called as flagellated cells. हम जब इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, but you'll come to know that there is a structure which is actually resembles the collar, है ना. So that is why this cells is also called as collar cells. आपको बस इतना ध्यान रखना है. Choanocytes बोलते हैं. And because उसके पास flagella है, this is also flagellated cells. They have a structure called as collar. That is why they are also called as collar cells. तो ये complete चीज़ आपको इतनी कहानी याद रखनी है. And one more, there is an outlet also. That outlet is osculum. यहाँ से पानी बाहर जाता है, यानी कि habitat क्या हुआ organism का? Habitat is aquatic. एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मराइन भी हो सकते हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है ना. तो बेसिकली अगर हम वाटर कैनाल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इफ वी टॉक अबाउट वाटर कैनाल सिस्टम, तो एक पॉइंट आप ध्यान रखना, दैट इज वाटर करंट है. वाटर करंट मीन्स ऑर्गेनिज्म कहाँ पर है, पानी में है, तो वाटर करंट के सराउंड तो होगा ऑर्गेनिज्म. बट नेचुरल सी बात है, पानी अंदर गया ऑस्टिया के थ्रू. ऑस्टिया कहाँ पे लीड कर रही है? इट इज द कैविटी दैट इज स्पॉन्जोसील. फ्रॉम द स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद क्वानोसाइट्स. वी नो दैट, वी कैन सी इन द डायग्राम दैट स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद द क्वानोसाइट्स. ठीक है, तो यू नो वाटर इज बीन सर्कुलेटिंग इन द स्पॉन्जोसील बाय परफॉर्मिंग द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. This is the system by which the organism can perform different life processes such as transportation, respiration, है ना, excretion, reproduction. जितने भी life processes हैं organism के, actually this has been occurring through the process water canal system, है ना. तो पानी में ऑर्गेनिज्म है, पानी अंदर गया ऑस्टिया के थ्रू, स्पॉन्जिसील में गया, वहाँ पे हमारे क्वानोसाइट्स प्रेजेंट हैं, तो वाटर इज सर्कुलेटिंग एंड परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस. आफ्टर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, द वाटर इज गॉन आउट विद द हेल्प ऑफ द आउटलेट दैट इज ऑस्क्यूलम. तो ये एक आपको चेन याद रखनी है, वाटर करंट, ऑस्टिया, स्पॉन्जिसील, ऑस्क्यूलम. This comprises water canal system in poriferans. समझ आई बात सबको? Yes or no? ठीक है, तो ये बेसिक है, बहुत डिटेल में नहीं गए हम लोग, बस थोड़ा सा जब आप ये याद रखोगे ना तो आपको दो तीन चीजें पता चलेंगी. एक तो स्पेसिफिक फीचर पॉरिफेरेंस का, दूसरा व्हाट इज द नेम ऑफ द इनलेट्स एंड आउटलेट्स इन केस ऑफ पॉरिफेरेंस, थर्ड द फ्लो ऑफ द वाटर in case of water canal system, with the help of which the organism is performing the different life processes. Is this okay to all of you? Yes, ma'am. So I guess आज के लिए इतना ही रखते हैं. Poriferans we have finished it up with. In the next class, I will try to finish all the phylums. That is from all the non-chordates rather, from the coelentrates to the echinoderms. ठीक है? So as if now in today's session, we are winding up. And this is all for today. In the next session, we'll go for the more non-chordates and we'll finish the non-chordates. So I guess आप लोग को आज हमने जितना भी डिस्कस किया अच्छे से क्लियर हुआ होगा. If it has been clear to all of you, if it has been in any way fruitful to you, please do like it and share it with your friends. That's all for today's class. Goodbye to all of you. Thank you all.